Welcome to the second session of today's lecture where I am discussing about the examples of operating system. In my first lecture I have already discussed about the features of the traditional operating system, that is your disk operating system. Now in this lecture I will discuss the features of Windows operating system and the Unix. Windows operating system is the extension of the disk operating system. It is considered as one of the most popular and simplest operating system, and the advantage of Windows operating system is that it can be used by any person who can read and understand basic English. So it does not require any special training. अगर मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं जो कि मेरा ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, वहां पे हर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकता था. फर्स्ट पीपल नीड टू गेट ट्रेंड कि हम लोग कैसे पाथ लिखते हैं, हम लोग कैसे कमांड देते हैं. अगर आपको किसी किसी फाइल को एक्सेस करना है, किसी फोल्डर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाथ लिखना पड़ता था कि वो फाइल कौन से ड्राइव में है, कौन से लोकेशन में है. वो पूरा लोकेशन हमें एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कंप्यूटर को देना पड़ता था. बट अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इट इज वेरी इंटरैक्टिव, इट इज ग्राफिकल, इट हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस, इट इज वेरी कलरफुल, जहाँ पे हर चीज आइकन के फॉर्म में अवेलेबल है. जस्ट हम माउस की हेल्प से वहाँ पे क्लिक करते हैं एंड वी कैन एक्सेस दोज एप्लीकेशंस, फाइल्स, फोल्डर. दैट्स व्हाई in the case of a Windows operating system, anyone, even a small child, a young person, technical, non-technical, a graduate, a doctorate, anyone can use this operating system. Now the question arises कि क्या अगर विंडोज आ गया तो हमने डॉस को यूज करना बंद कर दिया? Both the DOS and the Windows was developed by the same company, that is Microsoft. Windows operating system require DOS to run the various application program initially. That's why we install DOS on the memory and then Windows can be executed. अगर आप विंडोज जब आपने अपने से लैपटॉप ओपन किया है तो आप सर्च के ऑप्शन में कमांड लाइन टाइप करोगे, देन you will get a command line where you can write a path if you want to access any file or folder. Now let's see the elements of the Windows operating system. First, it is a graphical user interface. Graphical user interface का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हर चीज ग्राफ्स के फॉर्म में अवेलेबल है. ब्राउजर है, आपके माई कंप्यूटर है, गेम्स है, जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं, कंट्रोल पैनल है. अगर किसी को भी आपको एक्सेस करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक थ्रू द माउस ओनली. You don't have to write any path or any command. We have icons like pictures, document, application, program icon. हर चीज का आइकन है और हम आइकन पे क्लिक करते हैं. We have a task bar, start button, Windows Explorer, mouse button. Also we have a हार्डवेयर कॉम्पेटिबिलिटी, सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबिलिटी, हेल्प फंक्शन कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे तो हम हेल्प में जाते हैं, वहाँ पे हम जस्ट वी टाइप कि हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग, सो वी गेट द प्रॉपर हेल्प. And there are various versions of the Windows operating system. If we will see, like initially in the year 1985, Windows 1.01 was introduced. Later on, there are various updates in the Windows and we had a various version of the Windows operating system. तो अगर आप देखोगे कि
कितने सारे डेवलपमेंट हुए हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमने स्टार्ट किया था विंडोज 1.01 से, एंड नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग विंडोज 10, जिसमें बहुत एडवांस फीचर्स हैं, काफी इंटरेक्टिव है, वो कलरफुल है, बहुत सारे इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। Most of you have used Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista। Windows Vista में हमने देखा था कि बहुत सारे फीचर्स अब लाइक इसके न्यू वर्जन तो आए थे, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने इसको यूज़ नहीं किया था विंडोज़ विस्टा को। देन वी स्विच टू विंडोज 7, विंडोज 8, एंड nowadays even people are working with Windows 7 nowadays। अभी भी लोग Windows 7 पे काम करते हैं, बट अगर आप Windows 10 को जो भी यूज़ कर रहे होंगे, दे विल गेट टू नो कि इसमें कितने सारे एडवांस फीचर्स हैं एज कंपेयर टू द Windows 7। So we have seen that Windows operating system is more interactive and easy to use as compared to your disk operating system. Now let's come to the other operating system that we call a Unix. The Unix operating system is the earliest operating system which was developed in the year 1970s. If we will see the important points about the Unix operating system, so disk operating system was a single user operating system. At a time एक ही पर्सन उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता था, इसीलिए जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते थे हमारे, हमने उसी पे डॉस को इंस्टॉल किया था। बट द मेन फ्रेम कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर, वेयर वी परफॉर्म अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, तो उसके लिए तो हमें मल्टीटास्किंग फीचर चाहिए था। सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ फीचर ऑफ मल्टीटास्किंग। It has a multi-user computer operating system. More than one person can use at the same time. Also, it runs practically on every sort of hardware, and it provides stimulus to the open source movement. It has a, however, Unix भी आपका कमांड लाइन ही है, और ये भी बहुत ज़्यादा easy to use नहीं है। यहाँ पे भी हमें कमांड देना पड़ता है, वी हैव टू राइट अ पाथ। बट येस, इट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वी हैव टू बाय विंडोज़, जबकि यूनिक्स को हमें वी डोंट हैव टू पे फॉर द यूनिक्स, जस्ट वी हैव टू डाउनलोड यूनिक्स, and it is comparatively complex, and does it require a training if you want to work on the Windows operating system। और अगर हम एक दूसरा ड्रॉबैक देखें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इट डज नॉट गिव नोटिस और वार्न अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द यूजर एक्शन, वेदर यू हैव परफॉर्म्ड राइट और रॉन्ग। अगर आपने कोई फाइल को एक्सेस करना है, तो अगर आपने वो पाथ सही लिखा है या गलत लिखा है, दैट इज नॉट एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ योर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमने देखा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज, हाउ विंडोज इज डिफरेंट फ्रॉम योर यूनिक्स एंड द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Anyone, if have any doubt, please put your question in the discussion forum. I will answer your question there. And we will start with the new topic in the next class. Thank you.